So here, how to convert complex number into polar form, that we have to study. So our complex number is always in the form of x plus iy, and depending on the value of this real part and imaginary part, our complex number may lie in first quadrant or in second or in third or in fourth quadrant. If x plus iy, then our complex number will lie in first quadrant. Both x and y are positive. If z is equal to minus x plus iy, है ना, that means our real part is negative, imaginary part is positive, our complex number will lie in second quadrant. If z is equal to minus x minus iy, that means both real part and imaginary parts are negative, our complex number will lie in third quadrant. And if z is equal to x minus iy, real part is positive and imaginary part is negative, then our complex number will lie in fourth quadrant. It will lie in first quadrant. Done. So what is our polar form? Our polar form is in the form of r into cos theta plus I sin theta. So two parameters are required to write the complex number. First parameter is the modulus. That modulus is given by this formula. Modulus of complex number is nothing but the square root of this x. X is real part square plus imaginary part whole square. So modulus will give us as x square plus y square square root. Done. And second parameter is this theta. Theta is known as argument, and the value of argument based on the quadrant in which our complex number lies. If our complex number lies in first quadrant, for that case our argument will be phi. Phi कैसे find करेंगे? So formula to find the phi is tan phi equal to imaginary part upon real part mod, है ना, मॉड्यूलेशन लेना है तो आपको tan phi की जो phi है उसकी वैल्यू मिलेगी. Argument, if our complex number lies in second quadrant, then argument theta will be pi minus phi. If our complex number lies in third quadrant, then formula to find the argument theta is minus pi minus phi. And if our complex number lies in fourth quadrant, for that case the argument theta will be minus phi. And to find this value phi, we'll use this formula. And also we will use frequently these trigonometric ratios. That is tan pi by 6 is 1 by root 3, tan pi by 4 is 1, and tan pi by 3 is root 3. Clear, students? So this is simple note that we will use to find the polar form of this complex number. So let's start with question number 3. So that is your exercise 5.2. Question number 1 and 2 we have completed, and now we'll start with the question number 3. So question is, convert this complex number into polar form. You have to write this complex number into polar form. So what is the polar form? It's the r into cos theta plus I sin theta. So for this complex number, first we'll find the values of x and y. So complex number z is in the form of x plus iy. This is the standard form of complex number. So for this complex number, what is the value of x? X is nothing but the real z, and the value of x for this given complex number is 1. Clear? And y is our imaginary z, and value of that y is minus 1. Done? So x and y both are there. Now we'll start with the formula. First you have to find the modulus of this given complex number. So r is modulus. So modulus of complex number is nothing but the r. It is also written as mod z, and the formula to find the modulus of complex number is square root of x square plus y square. Put the values of x and y, है ना, ये formula है. So it's a square root of x square plus y square. X square 1 square, y square minus 1 square. So it's a 1 square plus 1 square. 1 square plus 1 square is 2. So square root 2. So value of our r, this r, that is our modulus, is square root of 2. First part complete. Done? दो पैरामीटर निकालने हैं, एक मॉड्यूलस और एक आर्ग्यूमेंट. मॉड्यूलस हो गया. Now for argument, the value of argument based on the quadrant in which our complex number lies. So now we have to check our complex number. Our complex number, given complex number z is 1 minus I, lies in
बोलो बच्चों, z इज इक्वल टू 1 - i कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से फॉर्म में? देखो 1 - i, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये फॉर्म आया क्या भाई? ये सामने रखा है, देखो कहाँ पर लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड। So our z is equal to 1 - i lies in fourth quadrant, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। डन। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आर्ग्यूमेंट थीटा है, वो क्या होगा? तो देयरफॉर our argument of z, that is our theta, is nothing but the -5। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? -5। अब इक्वेशन, ये फाइव कैसे फाइंड करें? फाइव कैसे फाइंड करना है? टेन फाइव इक्वल टू इमेजनरी पार्ट मोड ऑफ इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इसको हम रिजल्ट वन बोल दें। अभी हम फाइंड करेंगे ये फाइव। तो फाइव को फाइंड करने के लिए क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है, टेन फाइव इक्वल टू मोड ऑफ इमेजनरी जेड अपॉन मोड ऑफ रियल जेड, है ना? ये कुछ नहीं होता है, ये होता है वाई अपॉन एक्स। सो टेन फाइव इक्वल टू मोड वाई बाई एक्स, वाई क्या है हमारा? -1, और एक्स क्या है? 1। सो -1 अपॉन 1 1, और उसका मोड तो 1 हो जाएगा। सो टेन फाइव इक्वल टू 1। हमें तो 5 चाहिए, तो मैंने आपको बोला कि ये यूज करेंगे। सो 10 के कौन सी वैल्यू, कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है? π/4। सो हियर और 5 इज π/4। इसमें किसी को कोई डाउट? 5 इक्वल टू π/4। डन। सो यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करना है। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो हमारा आर्ग्यूमेंट मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, उसको हम बोलते हैं थीटा। और अगर हमारा z फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो होगा -5, और वो -5 क्या मिला हमें? 5 π/4। सो आर्ग्यूमेंट थीटा इज -π/4। बस, तो ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए पोलर फॉर्म के लिए, एक आर्ग्यूमेंट थीटा और एक मॉड्यूलस आर। डन। तो ये आर और थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, उसको यहाँ पर पुट करो तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। सो नाउ पोलर फॉर्म ऑफ z इज z इक्वल टू r, है ना? z इज इक्वल टू r, r क्या है हमारा? √2। सो इट्स √2 ब्रैकेट कॉस थीटा, थीटा क्या है? -π/4 प्लस आई साइन थीटा, अगेन थीटा क्या है हमारा? -π/4। सो दिस इज योर आंसर। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? चलो, तो ये सेम मेथड से बाकी के सब सम्स करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो, अभी किसी को समझ में नहीं आया है तो एक बार और देख लो, है ना? सेम मेथड से जाना है, सेम क्वेश्चन। राइट दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। सो अवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू -1 प्लस i, z इक्वल टू -1 प्लस i, है ना? इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। तो हमारा पोलर फॉर्म क्या होता है? z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। डन। अभी स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन। सो कंपेयर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस iy। सो हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x विच इज -1, है ना? कंपेरिजन, ये x हमारा रियल पार्ट है, सो रियल पार्ट इज -1, y हमारा इमेजनरी पार्ट है, सो y इक्वल टू 1। डन। दिस इज आवर रियल ऑफ z, दिस इज इमेजनरी ऑफ z। x और y मिल गए। देन यू टू फाइंड दी मॉड्यूलस, है ना? मॉड्यूलस की डेफिनेशन, फॉर्मूला। सो r इक्वल टू मोड z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square. Put the values of x and y. So r equal to -1 square plus 1 square, that is equal to √2. So now our modulus r is √2. Modulus r is √2.
क्लियर? नाउ आर मिल गया, अभी थीटा फाइंड करना है. सो थीटा के लिए हमें क्या करना है? थीटा इज अवर आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स ऑन दी क्वाड्रेंट इन विच अवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज. है ना, बार बार ये स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ. आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन दी quadrant in which our complex number lies. So here our complex number is z equal to minus 1 plus I lies in. बोलो बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में? हाँ देखो, माइनस 1 प्लस आई सेकंड क्वाड्रेंट. सो अवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. सो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्ग्यूमेंट थीटा होता है वो क्या होता है? सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दैट इज अवर थीटा. है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है? पाई माइनस फाइव. उसको रिजल्ट 1 बोल दे. अभी हमें क्या करना है? फाइव निकालना है. फाइव निकालने के लिए क्या करना है? डेफिनेशन. है ना, ये क्वांटिटी 10 फाइव. सो फाइव निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 10 फाइव इज y अपॉन x मोड y बाई x. सो 10 फाइव इक्वल टू मोड y बाई x. y इज 1, x इज -1. सो 1 अपॉन -1 और उसका मोड क्या होगा? 1. सो 10 फाइव इक्वल टू 1. अगेन देखो यहाँ पर 10 फाइव की वैल्यू 1 कौन से एंगल पर होती है? सो 10 पाई/4 1 होता है ना. पाई/4 पर 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा फाइव क्या होगा? है ना, 10 पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, ये 10 फाइव की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ये फाइव हमारा पाई/4 है. सो फाइव इक्वल टू पाई/4. इसको इक्वेशन 1 में पुट करो. पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारा आर्ग्यूमेंट थीटा मिलेगा. सो थीटा इक्वल टू पाई माइनस ये फाइव और ये फाइव हमारा पाई/4. सो पाई/4. सो आर्ग्यूमेंट थीटा इज पाई माइनस पाई/4. पाई माइनस पाई/4 क्या होता है? 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई/4. है ना, इसका आंसर आपका आएगा z इक्वल टू √2 cos 3 पाई/4 प्लस आई साइन 3 पाई/4. So now question number 5. Here our given complex number is z equal to -1 minus I. So this one is z equal to x plus iy. So compare this, we are getting x equal to -1 and y equal to -1. Both x and both y are negative. So now our modulus of z are equal to square root of x square plus y square. So this is equal to x square minus 1 square plus y square minus 1 square. So r equal to square root of 2. Done. So modulus is √2. Now we have to find the argument. For argument, we have to check the quadrant. So z is equal to -1 minus I lies in, बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट. है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट. थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट. हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट. दोनों माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट. सो अवर आर्ग्यूमेंट z, है ना. अभी ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपको खुद से सम्स कर देना है, क्योंकि मैंने आपको मेथड समझा दिए, तो आपको सब सम्स ऐसे ही करना है, कोई इश्यू नहीं आएगा. सो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है हमारा आर्ग्यूमेंट? -पाई माइनस 5. रेडी? तो अभी 5 फाइंड करना है. 5, तो 5 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम? वी आर यूजिंग फॉर्मूला 10 फाइव इक्वल टू मोड y अपॉन x. सो 10 फाइव इक्वल टू, एक ही मेथड से जाना है, मोड y बाई एक्स, -1 अपॉन -1, -1 अपॉन -1 इज 1. सो 10 फाइव इक्वल टू अगेन, सो अगेन 5 इक्वल टू क्या आएगा? पाई/4 माइनस पाई. 5 इक्वल टू पाई/4. Put in equation number 1. So we are getting our theta. Theta is minus pi minus 5. So pi minus 5. Minus 5 is pi/4. 5/4. So 4 pi minus 5 minus 3 pi/4. Our argument theta will be -3
पाई बाई 4. क्लियर Yes, sir. है ना. थीटा विल बी -3 पाई बाई 4. सो आवर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज r is √2 into cos theta, it's a cos -3 pi by 4 cos theta plus I sin theta Sine -3 pi by 4. is 3. डन है ना. z क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा. क्लियर. Yes, sir. अभी वो जो क्वेश्चन पूछा तनीषा ने कि अगर हमारा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को 0 आ जाए तो कैसे करेंगे, तो वो तो एकदम इजी हमारे लिए है ना. तो वो देख लेते हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म. सो क्वेश्चन नंबर 4. अभी पूरे चांसेस है हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब होने के. ठीक है, मोबाइल गर्म होगा और मैं लेफ्ट हो जाऊंगा. सो z इक्वल टू -3. तो देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा इमेजनरी पार्ट है वो 0 है ना. इमेजनरी पार्ट 0. तो कैसे होगा, देखो x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 0. हमें सेम मेथड से जाना है. सो नाउ और मॉड्यूलस r इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. माइक अनम्यूट है, किसी का म्यूट करो. इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर. 0 स्क्वायर इज 0. सो -3 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर 9. सो और r इज 3 है ना. r क्या आएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3. सो और मॉड्यूलस r इज 3. नाउ अभी क्वेश्चन यहाँ पर आएगा. अभी इसका क्वाड्रेंट चेक करना है, लेकिन क्वाड्रेंट में क्या दिक्कत आएगी, देखो. नाउ और कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -3 लाइस. देखो -3 कहाँ पर होगा, तो मैंने आपको ऐसे ग्राफ ड्रॉ करवाया था, रियल एक्सिस एंड इमेजनरी एक्सिस. तो ये हमारा जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट वो रियल पार्ट है ना. तो रियल पार्ट कहाँ पर होगा, -x एक्सिस पर, यहाँ पर होगा. यस और नो, है ना. ये रियल एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, ये रियल नेगेटिव एक्सिस, ये इमेजनरी एक्सिस एंड इमेजनरी नेगेटिव एक्सिस. तो ये रियल पार्ट है और रियल पार्ट भी कहाँ पर है, नेगेटिव साइड में. तो रियल पार्ट नेगेटिव साइड पर यहाँ पर होगा. तो ये इतना एंगल बनेगा. ये कितना एंगल है हमारा, पाई. सो ओवर आर्ग्यूमेंट थीटा इज पाई, डायरेक्ट मिलेगा. क्लियर Yes, sir. है ना. z इक्वल टू -3 प्लस 0i. तो ये हमारा रियल पार्ट है और रियल भी नेगेटिव डायरेक्शन में. ये हमारी रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस, और ये हमारी इमेजनरी एक्सिस है. तो रियल एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पर कितना होगा एंगल, पाई होगा. तो थीटा इक्वल टू पाई. सो आर्ग्यूमेंट z इज पाई एंड देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू r Sir. 3 cos थीटा cos पाई प्लस आई साइन पाई. बोलो बोलो. नहीं बोलेंगे, है ना. ये रियल पार्ट है, ओनली प्योरली रियल नंबर. ये कौन सा नंबर है, प्योरली रियल, है ना. प्योरली रियल और वो भी नेगेटिव है. तो एक्स एक्सिस नेगेटिव यहाँ पर होगी. तो ये जो एंगल है हमारा पाई मिलेगा. दैट इज अवर थीटा आर्ग्यूमेंट. डन. और ऐसा सेवन क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके बाद 7 करते हैं. तो दोनों में आपको समझ में आ जाएगा. प्योरली इमेजनरी नंबर है, सपोज z इज इक्वल टू आई, है ना. यहाँ पर सिर्फ रियल नंबर था, यहाँ पर सिर्फ इमेजनरी है. तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस Plus आई वाई. बोलो. I. 0 plus I. हाँ, 0 प्लस आई. सो और एक्स इज, ना, दिस इज 0 प्लस आई वाई. सो व्हाट इज अवर एक्स, सो और एक्स इज 0 और एक्स इज 0. दैट मीन्स रियल पार्ट इज 0 and y is 1. Done. So our modulus z, modulus of complex number is square root of x square plus y square. So x square plus y square is 0 plus 1 square, 1 square is 1. So हमारा r आएगा 1. Clear. R equal to 1. Now complex number, now
और कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आई लाइज ऑन, कहाँ पर लाई करेगा देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, है ना। z इज इक्वल टू आई इमेजनरी एक्सिस और पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस, तो ऐसे होता है हमारा ग्राफ। दिस इज अवर रियल एक्सिस और ये हमारी इमेजनरी एक्सिस। दिस इज आई, है ना, पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस। तो यहाँ पर होगा z इज इक्वल टू आई, तो ये एंगल थीटा है कितना होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये थीटा इज पाई बाई 2। डन। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहाँ पर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। So theta equal to pi by 2. Positive y axis making the angle of theta equal to pi by 2 with x axis. So our argument theta is pi by 2. R equal to 1, theta equal to pi by 2. So our polar form of complex number. So our polar form of complex number z is r cos theta. R is 1. Cos theta, theta is pi by 2 plus I sin pi by 2. Clear students? इसमें किसी को कोई डाउट? डन। अभी लास्ट क्वेश्चन जो सबको आता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हियर z इक्वल टू √3 प्लस आई इज देयर। कर पाएंगे खुद से? सो z इक्वल टू x प्लस आई वाई, है ना। सो x इक्वल टू √3, x इक्वल टू √3 एंड y इक्वल टू 1। सो मॉड्यूलस r mod z equal to square root of x square plus y square, square root of x square plus y square, 3 square plus 1 √4. So our r is 2. Done. r is 2. अभी मॉड्यूलस के लिए हमें क्या करना है, सॉरी आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है। तो √3 प्लस आई लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमारे लिए एकदम इजी, क्योंकि वहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है थीटा, वो कितना होता है, तो जितना पाई होता है। डन। और ये फाई कैसे निकालेंगे, इट्स tan phi इक्वल टू मोड y बाई x। सो tan phi इक्वल टू मोड y कितना है 1, है ना, y इज 1 और x 1 बाई √3। सो tan phi इज 1 अपॉन √3। तो बोलो कौन सी tan की वैल्यू 1/√3 होती है, ये रहा हमारा, है ना, थीटा इक्वल टू, और यू कैन से phi इक्वल टू पाई बाई 6। Done. So phi is pi by 6. So phi pi by 6, and therefore our argument theta is pi by 6. So theta is pi by 6, r is 2. तो complex number लिख पाएंगे। So it is polar form. So polar form of z, r into cos theta plus I sin theta, r is 2. So it's a 2 cos pi by 6 plus I sin pi by 6. Clear? Students,